میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے عالم بالا پر ہوشنا. عالم بالا پر ہوشنا. اور ہوشنا جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے ہوشنا، جس کا کیا مطلب ہے کہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے بچا یا مہربانی فرما کر ہمیں چھڑا، ہوشنا ہمیں نجات دے. اور عالم بالا جو ہے یہ روحوں اور فرشتوں کا جہان ہے. یہ بہشت کی وہ جگہ ہے جہاں پر اعلیٰ درجہ کے لوگ جو ہیں ان کے رہنے کی جو ہے جگہ ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ عالم بالا پر ہوشنا. آئیے بائبل مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں مقدس متی کی انجیل 21واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے پڑھیں گے. یہاں پر لکھا ہے، سیون کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر. پاس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور ان پر بیٹھ گیا. اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائی. اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر خداوند کی برکت ہو. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. یہاں پر ہم نے کلام مقدس میں مقدس متی کی انجیل 21واں باب اس کی 5ویں آیت سے ہم نے پڑھا ہے، سیون کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور کس پر سوار ہے؟ گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر. لادو جو ہے وہ جانور جس پر سامان لاتے ہیں، یہ سامان اٹھانے والا جو ہے وہ جانور ہے. اور یہاں پر لکھا ہے کہ لادو کے بچے پر. یسوع مسیح بادشاہ کا بادشاہ ہے اور کس پر سوار ہے؟ گدھے پر. گدھا جو ہے معصومیت کو ظاہر کرتا ہے، معصوم جانور ہے جس کے اوپر بوجھ اٹھایا جاتا ہے. اب بادشاہ جو ہیں، بادشاہ یا راجے مہاراجے، وہ گھوڑوں پر سواری کرتے ہیں. گھوڑا جو ہے یہ جنگ کی علامت سمجھا جاتا ہے. جو لوگ گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر آتے ہیں یہ سائن جو ہے یہ جنگ کا سائن ہوتا ہے کہ وہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں. لیکن میرا اور آپ کا بادشاہ گھوڑے پر نہیں ہے، گدھے پر سوار ہے. اور پیغام جو ہے وہ صلح کا پیغام ہے، حلیمی کا پیغام ہے اور محبت کا پیغام ہے. اور یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور ان پر بیٹھ گیا. اور بھیڑ میں اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے. اب کپڑے جو راستہ میں بچھائے تھے، یسوع کے زمانے میں جب کسی کو خوش آمدید کہا جاتا تھا تو یہودی لوگ خوش آمدید کہنے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے بادشاہ کو اپنے کپڑے اپنی چادریں راستے میں بچھا دیتے تھے. ایک پروٹوکول دیا جا رہا تھا، ان کو ایک آنر دیا جاتا تھا. اب یہاں پر یسوع مسیح جب آ رہے ہیں وہ لکھا وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور ایک بہت بڑا پروٹوکول ہے. اور لکھا ہے کہ لوگوں نے راستے میں جب جا رہے تھے درختوں سے ڈالیاں کاٹ لی، وہ بھی راستے میں بچھا دی، اور بھیڑ آگے پیچھے ہے. ایک بہت بڑا ہجوم ہے جو یسوع مسیح کا استقبال کر رہا ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوشنا ہوشنا،
मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलमे बाला पर होशाना। आज हमें इसका मतलब मालूम होना चाहिए कि आलमे बाला पर होशाना, होशाना के नारे हम क्यों लगाते हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ है और यीशु मसीह का इस्तेमाल कर रही है। फकीर और फरीसी जो है वो जल गए और उन्होंने कहा कि इनको चुप करा दे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर भी चला उठेंगे, पत्थर भी चला उठेंगे, क्योंकि वो खुदा की हम्द कर रहे हैं, क्योंकि वो खुदा के नाम को जो है वो जलाल दे रहे हैं। इसलिए जो है यीशु मसीह का इस्तकबाल बड़ी जो है वो शान और शौकत के साथ किया जा रहा है और लोग मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। आज भी हम दूसरी आमद के लिए तैयार हैं और आज हमने उस आमद के लिए अपने आप को तैयार करना है कि वो बादशाह का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद फिर आने वाला है। आइए एक और हवाला देखिए, दूसरी सलातीन की किताब और उसका 9वां बाब और उसकी जो है 13वीं आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, दूसरी सलातीन 9वां बाब। तब उन्होंने जल्दी की और हर एक ने अपनी पोशाक लेकर उसके नीचे सीढ़ियों की चोटी पर बिछाई और नरसिंगा फूंक कर कहने लगे कि याहू बादशाह है। आमीन। अब यहाँ पर जब याहू को बादशाह बनाया गया, यहाँ पर सलातीन की किताब में हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा तब उन्होंने जल्दी की और हर एक ने अपनी पोशाक लेकर उसके नीचे सीढ़ियों की चोटी पर बिछाई और नरसिंगा फूंक कर कहने लगे कि याहू बादशाह है। याहू उस वक्त जो था इस्राएल का, उसको बादशाह बनाया गया और लोगों ने बादशाह को इज्जत देने के लिए, बादशाह के प्रोटोकॉल के लिए क्या किया है, अपनी पोशाक लेकर उसके नीचे सीढ़ियों पर बिछा दी और नरसिंगा फूंका जा रहा है कि याहू बादशाह है और ये अनाउंसमेंट की जा रही है कि याहू जो है आज से इस्राएल का बादशाह है। यीशु मसीह जब बड़ी भीड़ के साथ जा रहे हैं तो वहां पर नरसिंगा फूंका जा रहा है, लोग कह रहे हैं होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। और इसको हम देखते हैं सलातीन की किताब में ये कैसे जो है ये पहले से ये नबूवत की जा रही है। पुराने अहदनामा के अंदर बेशुमार नबूवतें हमें नजर आती हैं, जो सारे साइन जो है हमें यीशु मसीह की तरफ जो है वो मिलते हैं। तो यहाँ पर भी एक साइन जो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर लोगों ने अपने कपड़े, अपनी पोशाक लेकर याहू बादशाह के लिए बिछा दी है। हालांकि याहू बादशाह उस वक्त जो था इस्राएल का बादशाह बना है, नरसिंगा फूंका गया है। यीशु मसीह जो है वो क्या है, बादशाह का बादशाह, पूरी उम्मत का बादशाह, पूरी दुनिया का बादशाह, वो बादशाह जो अब तक है। दुनिया के बादशाह आते हैं चले जाते हैं, दुनिया के बादशाह इस दुनिया पानी से चले जाते हैं, लेकिन हमारा जो बादशाह है वो अब तक जिंदा है, वो अब्दुल अबाद जिंदा है, ऐसा बादशाह है। और इस बादशाह का जो है हम देखते हैं कि इस बादशाह का प्रोटोकॉल है, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है। और यहाँ पर लोग डालियां लेकर नारे लगा रहे हैं, खुशी के साथ झूम रहे हैं। उनके लिए एक बड़े फख्र की बात है कि यीशु मसीह उनके दरमियान में है। आज हम रूह से महसूस करते हैं कि हमारा यीशु जो है हमारे दरमियान में है। और यहाँ पर कलाम मुकद्दस में एक और हवाला हम देखते हैं, ज़बूर 118 और उसकी 25 आयत। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, हमने अभी जो है होशाना का मतलब देखा है। यहाँ पर ज़बूर नबी जो है, हाँ जी, बचा ले, ए खुदावंद खुशहाली बख्श, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आमीन। यहाँ पर ज़बूर 118 ये फतहमंदी का ज़बूर है, ज़बूर 118 शुक्रगुजारी का ज़बूर है। और यहाँ पर लिखा है 25 आयत में, ए खुदावंद बचा ले, ए खुदावंद खुशहाली बख्श, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। पुराने अहदनामा में बेशुमार नबूवतें हैं जो यीशु मसीह के आने के बारे में
पहले से ये नबूवतें और पेशेन गोइयां हो रही हैं। और यहाँ पर ज़बूर की किताब में और होशना का मतलब उन्होंने क्या पढ़ा? तो मुझे बचा, मुझे छुड़ा, हमें निजात दे। लोग ये नारे लगा रहे थे कि होशना होशना, हमें निजात दे। ये बात फकीयों फरीसियों को पसंद नहीं आ रही थी कि निजात देने वाला उनके दरमियान में है और लोग कह रहे कि हमें निजात दे। और यहाँ पर ज़बूर की किताब में लिखा है कि खुदावंद बचा ले, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलमे बाला पर होशना। इसलिए लोग जो हैं वो होशना के जो वो नारे लगा रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में कि होशना जो है, आज हम जब नारा लगाते हैं तो इसका मतलब है कि हमें निजात दे। आज खोखले नारे लगाने की जरूरत नहीं है। आज शायद हम बड़े बड़े जुलूस तो निकाल लेते हैं, हम ये भी कहते हैं होशना होशना, लेकिन मतलब नहीं जानते। मतलब है मुझे बचा, मुझे छुड़ा, मुझे निजात दे। लेकिन जुलूस के बाद फिर हम दुनियादारी के कामों में वैसे। यहाँ पर जो भीड़ नारे लगा रही है वो निजात के लिए पुकार रही है, क्योंकि उनको ऐसे बादशाह की जरूरत थी जो उनको छुड़ा सके, जो उनको निजात दे सके। और आज हमें जो जरूरत है वो निजात की जरूरत है। आज हमें मखलसी की जरूरत है। और आज जब हम नारा लगाते हैं होशना, तो इसका मतलब है कि खुदा हमें जो है वो बचा। और 10वीं आयत में लिखा है, जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यसू है। कौन है? यसू है। और यसू का मतलब क्या है? बचाने वाला, छुड़ाने वाला। और जब हम यसू को अब्रानी में देखते हैं तो यशवा है, और यशवा का मतलब ही बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है। और यहाँ पर हलचल मच गई है, लोग कह रहे भी कौन है? तो लोगों ने कहा भीड़ में से कि ये नासरत का नबी यसू है, ये बादशाह का बादशाह है, ये निजात दहिंदा है, ये इस्राएल के अंदर निजात को लेकर आया है, निजात का पैगाम लेकर आया है। और यीशु मसीह जो है, हम देखते हैं कि वो बादशाह का बादशाह, और सवारी जो है वो एक आम से जानवर पर सवारी की गई है, गधे के ऊपर, ताकि मेरी और आपकी रसाई यीशु मसीह तक आसानी से हो सके। बादशाह, जो बड़े बड़े बादशाह होते हैं, घोड़ों पर सवार होते हैं, हाथियों पर सवार होते हैं, उनका एक बड़ा प्रोटोकॉल होता है, लेकिन बादशाह तक हम पहुंच नहीं पाते, बादशाह तक हमारी रसाई नहीं हो सकती। ये वो बादशाह है कि जिसके आगे लोग डालियां बिछा रहे हैं। ये वो बादशाह है जिसको मिलने के लिए हर एक ख्वाहिश का इजहार कर रहा है और नारे लगा रहे हैं होशना होशना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। क्या खुदावंद हमें बचा ले, हमें निजात दे। आज मेरे अजीजों, हमें जरूरत है कि हम यीशु से कहें, जब हम कहते हैं होशना, तो इसका मतलब हमें निजात दे। आज हमें निजात की जरूरत है, आज हमें मखलस की जरूरत है, और वो मखलसी, वो निजात, हमारा निजात दहिंदा यीशु मसीह हमें दे सकता है, और निजात नहीं। ज़बूर 118 को हमने पढ़ा, जो फतह का ज़बूर है, शुक्रगुजारी का ज़बूर है, और वहां पर लिखा है कि खुदावंद हमें बचा, हमें छुड़ा। ज़बूर नवीस वहां पर मखलसी के लिए खुदा से कह रहा है, आज हमारी मखलसी, हमारी निजात यीशु मसीह के हाथ में है, और ये मखलसी हमें कहीं से नहीं मिलती। और यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है, लोगों ने अपने कपड़े बिछाए, लोगों ने दरख्तों से डालियां काटी, और लिखा है राह में फैला दी। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में लिखा है, जब हम उसके 15वें बाब को पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, जो डाली फल लाती है उसे वो क्या करता है? छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। जो डाली फल नहीं लाती
اس کو وہ کاٹ ڈالتا ہے اور لوگ اسے آگ میں جھونک دیتے ہیں۔ تو ہمیں ایسی ڈالی بننا ہے جو ہری بھری ہو، پھلدار ہو، اور جہاں پر لوگوں نے اگر ڈالیاں بچھائی ہیں تو وہ ہری بھری ڈالیاں تھی، خوبصورت ڈالیاں تھی، کیونکہ بادشاہ کے ایک پروٹوکول ہے، اور آج ضرورت ہے خوبصورت ڈالی بننے کی، پھلدار ڈالی بننے کی۔ اور جب ہم اچھی ڈالی بن جائیں گے تو پھر ہم جو ہے مسیح کا استقبال جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم ایسی ڈالی بن جائیں جو پھلدار ہو، ایسی ڈالی بن جائیں کہ واقعی جو پھلوں سے لدی ہو اور جو ہری بھری ہو۔ سوکھی ڈالی کو کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن جو ڈالی پھل نہیں لاتی اسے کاٹ ڈالا جاتا ہے، لوگ اسے آگ میں جھونک دیتے ہیں۔ اب یہاں پر لوگوں نے جب ڈالیاں لی ہیں تو ہری بھری لی ہیں، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ آج بادشاہ کو سوکھی ڈالیوں کی ضرورت نہیں ہے، اچھی ڈالیوں کی ضرورت ہے، ہری بھری ڈالیوں کی ضرورت ہے۔ اور ہری بھری ڈالیاں آپ تبھی بن سکتے ہیں جب خدا کا کلام آپ کے اندر ہوگا، جب آپ ہوشنا کے نعرے کو سمجھ جائیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات دے، ہمیں چھڑا، ہمیں مخلصی دے۔ اور لوگ جو ہے وہ خوش آمدید کہہ رہے ہیں، لوگ اپنے کپڑے راستے میں بچھا رہے ہیں۔ آج ہم یسوع مسیح کے استقبال کے لیے کیا کریں؟ کیا ہم صرف کھوکھلے نعرے لگا کر، صرف ٹیمپریری عبادت کر کے، یا پھر ایک دکھاوے کا جلوس نکال کر؟ یہ بادشاہ کا پروٹوکول نہیں ہے۔ جب آپ کا دل مسیح کے لیے نہیں دھڑکتا ہے تو پھر آپ کا جو ہے مسیح کو ویلکم کرنا بے معنی ہے۔ آپ کے دل کو خالص ہونا ضروری ہے۔ آپ کے دل سے جب یہ آواز نکلے گی ہوشنا ہوشنا، تو پھر مسیح اس کو قبول کرے گا۔ پھر ہمارے لیے واقعی یہ سیلیبریشن کا دن ہے، ہمارے لیے واقعی مبارک دن ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے۔ میرا اور آپ کا مسیحا جو اس دنیا میں آیا ہماری نجات کے لیے، آج ہم سے کیا توقعات ہیں، ہمیں کیسے اس کے پاس آنا ہے؟ ہم نے وہ بننا ہے کہ واقعی ہم مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچ جائیں۔ لوگوں نے اپنے کپڑے بچھائے، پاکیزگی کے کپڑے، پاکیزگی کو ظاہر کرتے ہیں، راست بازی کو ظاہر کرتے ہیں۔ آج ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ڈالیاں بچھائیں جو ہری بھری ڈالیاں تھیں، خوبصورت تھی، اور آج جب ہم کھجور کی ڈالیاں لیتے ہیں یہ فتح مندی کی علامت ہے، ہم فتح کو ظاہر کریں، ہم جو ہے بادشاہ کے بادشاہ کو پروٹوکول دے رہے ہیں، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں ہوشنا۔ پھر جب ہم ہوشنا کا نعرہ لگاتے ہیں تو پھر بڑا خوبصورت نعرہ لگتا ہے، کیونکہ ہم اندر سے خالص ہیں، ہم اندر سے پاک ہیں، ہمارا کنیکشن صرف خداوند کے ساتھ ہے۔ ہم خدا کو دکھا رہے ہیں، دنیا کو نہیں دکھا رہے۔ آج دنیا کو دکھانے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن خدا کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ خدا آج ہم سے خالص دل چاہتا ہے، خالص دل مانگتا ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ تو آج جب ہم ہوشنا کے نعرے لگاتے ہیں تو پھر دل سے جب نعرہ لگتا ہے، دل سے جب دعا نکلتی ہے، دل کی آواز جب عالم بالا پر پہنچتی ہے تو پھر ہم بابرکت ہوتے ہیں۔ اب ہمیں یہاں پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرا بادشاہ کسی گھوڑے پر نہیں سوار بلکہ گدھے پر سوار ہے، ایک معصوم سے جانور پر سوار ہے جس کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے۔ اس لیے سواری کی تاکہ میری اور آپ کی رسائی مسیح تک بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ یہاں پر محبت کا پیغام لے کر مسیح یسوع نکل رہے ہیں، صلح کا پیغام لے کر نکل رہے ہیں، اور یہاں پر نجات کا پیغام لے کر نکل رہے ہیں۔ اس لیے لوگ جو ہیں وہ ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہیں، کیونکہ ضرورت ہے۔ آج سے 2000 سال پہلے ان کو ضرورت تھی نجات کی، آج 2000 سال بعد ہمیں ضرورت ہے نجات کی، ہمیں ضرورت ہے مخلصی کی، اور یہ مخلصی تب ہی ہے جب دل سے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں۔
तो फिर हमारी दुआएं आलम बाला पर पहुंचती हैं और खुदा के नाम को जो है वो जलाल मिलता है। और यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो किसके नाम पर आता है? खुदावंद के नाम पर आता है। आलमे बाला पर होशाना। सारे शहर में हलचल मच गई। लोग कह रहे हैं भी क्या हो रहा है, कौन है? ये यीशु है, नासरत का नबी यीशु है, जो निजात देने के लिए हमारे दरमियान में आया है। आज लोग जब पूछते हैं इतना नारे लगा रहे हो, ये यीशु मसीह की फतह का नारा है, क्योंकि हमें मखलसी देने के लिए हमारे दरमियान में आया है, हमारे दरमियान में उतर चुका है। इसलिए हम खुदा के नाम को जो है वो जलाल देते हैं। तो यहाँ पर ये लोग खुशामदीद कह रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। आज मसीह होते हुए क्या हम मसीह को खुशामदीद कह रहे हैं? क्या हमने उसको वेलकम कर रहे हैं, या सिर्फ हम खोखले नारे लगाकर वेलकम कर रहे हैं? उसको खुशामदीद करने कहने के लिए सबसे पहले आपको पाक होना जरूरी है। पहाड़ी बात में क्या लिखा है? मुबारक है वो जो पाक दिल हैं। किसको देखेंगे? खुदा को देखेंगे। मसीह यीशु को वेलकम करने के लिए सबसे पहले पाकीज़गी का लिबास होना जरूरी है। पाकीज़गी के लिबास के बगैर हम वेलकम नहीं कह सकते। आज अगर आप किसी बादशाह को प्रोटोकॉल देने के लिए जाएं, आप गंदे बंदे बन जाएंगे। साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, वेल पोजीशन, बड़ा परफ्यूम लगाकर खूबसूरती के साथ किसी बादशाह को मिलने के लिए जा रहे हैं, इस्तकबाल के लिए। हम सिर्फ बादशाह की एक झलक देखने के लिए रोड पर खड़े हो जाते हैं कि हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, एक झलक देख, लेकिन फिर भी हम बड़े नीट एंड क्लीन। अब यहाँ पर वो बादशाह है जो अबदी बादशाह है, जिसकी बादशाही अबदी है, आरजी नहीं। हम आरजी लोगों के प्रोटोकॉल के लिए अपने आप को इतना संवारते हैं, तो यहाँ पर इस बादशाह के प्रोटोकॉल के लिए हमने अपने आप को रूहानी तौर पर संवारना है। सबसे पहले हमने अपने लिबास को तब्दील करना है, पुरानी इंसानियत को उतारना है और यहाँ पर नई इंसानियत को पहनना है, लिबास को चेंज करना है। और फिर हमने जो है अपने हाथों में डालियां लेनी है, डालियां जो फलदार हों, जो हमारी मोहब्बत को ज़ाहिर करती हैं कि वाकई हम मसीह यीशु से प्यार करते हैं, वाकई हमें मसीह से जो है मोहब्बत है। तो फिर हम कहेंगे कि होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। फिर जब हमारी मोहब्बत का इज़हार खुदा के साथ होगा तो फिर खुदा बरकतों के दरवाजे खोलेगा, आसमान खोलेगा कि वाकई हम दिल के साथ अपने मसीह का इस्तकबाल कर रहे हैं, दिल के साथ हम प्रोटोकॉल जो है वो दे रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों ने दिल के साथ, दिल जमाई के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ जो है वो डालियां बछाई हैं, कपड़े बछाए हैं और नारे लगा रहे हैं, लेकिन लोग जल रहे हैं दाएं बाएं। जैसी स्पिरिट उनके अंदर काम कर रही है, क्योंकि ऐसा मसा, ऐसी बरकत उनको नजर आ रही थी, इसलिए वो जल भून गए। और उन्होंने कहा कभी इनको चुप करा भाई, ये क्यों नहीं चुप कर रहे? मसीह ने कहा ये चुप करके तो पत्थर भी चला उठेंगे, क्योंकि खुदा जो है पत्थरों में से भी अपनी कुदरत को ज़ाहिर कर सकता है और अपने नाम को जो है वो जलाल दे सकता है। तो आज अगर हम मसीह को खुशामदीद कहना चाहते हैं, वेलकम करना चाहते हैं, और जैसा कि लोगों ने रास्ते में कपड़े बिछाए, तो सबसे पहले हमने अपने आप को तैयार करना है। तैयारी के बगैर हम मसीह को प्रोटोकॉल नहीं दे सकते। तो आज ज़रूरत है कि आज हम खुदा की हुजूरी में हैं, आज हम पाम संडे मना रहे हैं, हुजूरों की डालियां लहरा रहे हैं, तो क्या हम दिल से तैयार हैं? क्या दिल के साथ हम उसको वेलकम कह रहे हैं, उसको खुशामदीद कह रहे हैं, ताकि सारी इज्जत, सारा जलाल जो है हमारे खुदा यीशु मसीह को मिले? अपने दिलों को तैयार कीजिए, अपने दिलों की राहों को तैयार करें। जब आप इस राह को तैयार कर लेंगे तो फिर आप जो है वाकई बाबरकत हो जाएंगे और खुदा का जलाल आपकी जिंदगियों में कसरत के साथ जो है वो ज़ाहिर होगा। आए